नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी हार भाजपा के कुछ गद्दारों के कारण हुई है। प्रसिद्ध वकील हनुमंत राय सिंदोल ने बीदर दक्षिण को विकास करने का निवेदन किया। सिद्धरामैया वर्सेस डीके शिव कुमार, जाने किसके पास कितना पावर, किसका सियासी पलड़ा भारी। कर्नाटका कांग्रेस में लड़ाई शुरू, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के घर के बाहर लगे सीएम वाले पोस्टर। कर्नाटका चुनाव, हारते हारते बचा भाजपा का उम्मीदवार, महज 16 वोटों के अंतर से मिली जीत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी हार भाजपा के कुछ गद्दारों के कारण हुई है। उन्होंने रविवार सुबह बीदर शहर में बुलाई गई प्रेस मीट में यह बात कही। बीजेपी के डीके सिद्धराम और अन्य ने पार्टी के साथ विश्वासघात करने के लिए खुद की पीठ में छुरा घोंपा है और कई ने वामपंथी लाइनों का पालन किया है और जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार की ओर से काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे जालसाजों की सूची तैयार कर ली है और पार्टी नेताओं को भेजेंगे। उनके खिलाफ उचित कार्यवाही का अनुरोध किया है और वह सूची जल्द ही जारी की जाएगी। इस अवसर पर अशोक पाटिल आलियाबाद, विश्वनाथ उप्पे, शिवराज सिंह ठाकुर, उमेश कटमे, महेश्वर स्वामी उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तावेल्लरू ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಇಡುವಂತ, ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಹೋಗು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಓಟನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಎಲ್ಲಾರ್ದನೆ ಸುಮಾರು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲುಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಧೋಕಾವನ್ನ ಮಾಡಿ 2 ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಅದೇ ರೀತಿ। ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನವನು। ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಬದ್ಧರಿರುವವರು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಬದ್ಧರಿರುವವರು। ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 2 ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು।
ಕೇವಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರಂತೆಯೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನನ್ನ ನಗರದ ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಆಡಲಾರದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಾರದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಜಾತಿಯ ಪಿತೂರಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಇವತ್ತು, ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ, ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹಣಬಲ, ತೋಳ್ಬಲ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನ ಒಡೆದಾಳುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇಡುವಂತಹ 17,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಡ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನಡತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 35 ವರ್ಷ ಒಂದು ಜೀವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ 17,700 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ನಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದೇವನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮತದಾರರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಾಯುವ ತನಕ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸೇವೆನ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. बीदर दक्षिण के निवासी एवं प्रसिद्ध वकील हनुमंत राय सिंदोल ने बीदर दक्षिण से विजयी हुए भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े से निवेदन किया है कि वह बीदर दक्षिण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं और लोगों को सहूलत फराहम कराए। वह आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपना मैनिफेस्टो में बोली थी वो 200 यूनिट तक करंट मुफ्त देंगे, 10 kg चावल राइस फ्री में देंगे, युवाओं को 2,000 रुपया और हर घर 3,000 रुपया मासिक। वैसे ही बस में महिलाओं को फ्री सर्विस के लिए गारंटी बोल के अपना मैनिफेस्टो में बोले थे। हमारे कहना ये है, ये जो पैसे है कर्नाटक के लोग नहीं, हर आदमी का रेवेन्यू जो टैक्स देते हैं उसके पैसे है, अच्छे सरकार के लिए वो यूज़ करें। ऐसा अगर आप फ्री में बांटते गए, अगर आप सरकार में कर्जा लाएंगे तो फिर ये लोगों के ऊपर ज़्यादा कर्जा होते। इसी के लिए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देना और हमारा ये मांग है कि लोगों को किसी तरीक़ा से फिर ज़्यादा कर्जा ना करते हुए सरकार चलाओ बोल के हमारा आग्रह है। बीदर दक्षिण साउथ एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरा विलेजेस से है, वो बड़ा सिटी नहीं है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल्स नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं, हॉस्टल्स नहीं हैं। वहाँ के
जो लोग हैं बहुत मुसीबत में हैं। अगर कॉलेज को आना है तो सुबह सुबह उठ के आना, फिर शाम को जाना। वैसे ही 7th पास होते ही बहुत स्कूल, बहुत विलेज में उनको हाई स्कूल नहीं है, लड़कियां हैं, लड़का हैं, हॉस्टल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम ये हिसाब से देखें तो इस व्यवस्था को सरकार प्रायोरिटी बनना, और यहाँ से हमारे क्षेत्र में जो दक्षिण से इस बार लोग, मेरे दोस्त यानी कि फ्रेंड डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े जी को जीत दिलवाया है। ये काम में उन्होंने बहुत अच्छा काम करके एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बताना और करना बोल के हमारा आग्रह है। हम उम्मीद करते हैं बेलदाड़े जी को जो लोग इस बार जीत दिए हैं, ये काम में उन्होंने सक्सेस होना, सरकार को जाके रिप्रेजेंटेशन करना, सरकार में यानी कि फ्रेंडशिप के नमूने से काम लेना। सरकार कौन सी भी हो वो लोगों की सरकार रहता है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना बोल के हमारे आग्रह है। हम उम्मीद रखते हैं ये सरकार ट्रांसपेरेंट और भ्रष्टाचार रहित सरकार रहेंगे बोल के। पूरा कर्नाटक के जो सरकार रहता है वो अच्छा रहेंगे और हम उनको साथ देते लोग बोल के हम इतना बोलते ही मेरा ये जो बोलने के बातें हैं जन कल्याण के पर में है बोल के हमने अब मेरा बात समाप्त करता हूँ। मैंने ये जो तो बात है हमने बोले है, जो अशोक खेड़ी साहब थे उनके पीरियड में मैंने एक एप्लीकेशन दिया, उन्होंने रोड बना दिया है। मैंने नहीं किया बोल के नहीं बोलता हूँ। बंडेप्पा जी भी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है जितना हो सके वो करे, मगर इस प्रायोरिटी को कोई भी नहीं अभी तक नहीं करे। उनको मैं अभी उनको बोलने से वो वापस नहीं आते। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे भी कुछ गलतियाँ होंगे, लोग भी उनको नहीं पूछे होंगे हाई स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में और पशु आस्पत्रि के बारे में कोई नहीं भी पूछ सकते। लोगों को मालूम नहीं होता, लोग में ऐसा रहते गांव में, ये हमारे गांव को क्या होना क्या नहीं होना वो बताना चाहिए। अभी तो हम उनके नॉलेज में ला रहे। अब पीछे के बात अगर हम बोले नहीं बोले, उसके बाद अगर हम इसको आगे लेके जाते तो डेवलपमेंट नहीं होता। हमारा बोलना है प्रायोरिटी इस बात को दो, एजुकेशन को दो, हॉस्टल को दो, हॉस्पिटल को दो। क्योंकि अगर आप फ्री बांटते गए, ये मैं दक्षिण क्षेत्र बोल के एक नहीं बोल रहा हूँ, सारे कर्नाटक में अगर आप एजुकेशन को प्रायोरिटी दिए, अगर आप हॉस्पिटल को प्रायोरिटी दिए, लोग आपको बहुत ये करते हैं। क्यों बोले तो मैं मानता हूँ बहुत लोगों को खाने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप 10 किलो चावल करते हैं, हम उसके विरोध में नहीं है, मगर मेरा बोलना ये है पूरा सरकार अगर उचित बांटते गए तो पैसे हम कर्जा लाना पड़ते। एक बार कर्जा लिए बोले तो आगे हम क्या फेस करते, हार्डशिप होते, हमको ये समझ में आना चाहिए। क्यों बोले तो हमारा जो इनकम है, बजट है, उसके अंदर रहना है। थोड़ा बहुत अगर हमको मार्जिन में रहता है तो हम कुछ 1-2 मैनिफेस्टो हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मगर पूरा अगर आप कर्जे लाते हैं, वो बोलते ना कर्जा करके घी खाना, ये कौन सा बड़ी बात है। हमको फंसना नहीं है। क्यों बोले तो लोग बहुत मुसीबत में होते, फिर महंगाई ज़्यादा होते। ये महंगाई की वजह से क्या क्या होता, मान लेते, कुछ लोगों को अच्छे दिखते, मैनिफेस्टो में ये विचार देख के वोट देते, मगर हमको क्या है एक डेवलपमेंट नहीं होता। उसके वास्ते डेवलपमेंट को ध्यान के रखते हुए भ्रष्ट और निष्पक्षपात, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हमको ये वोट डाले, वो वोट डाले, ये बात नहीं। जो भी वोट डाले हैं नहीं डाले हैं, बिना उसको नज़रअंदाज करके हमको एक मॉडल, कैसे भी हमको देश में कर्नाटक को एक अच्छा नाम है वो नाम को बरकरार रखना। हम ये उम्मीद करते। सरकार तो सरकारी हो, पक्ष अलग होता है, सरकार अलग होता है। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकार तो लोगों की होता है। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, देखो भाई तुम वोट नहीं डाले हम ये काम नहीं कर सकते बोल के नहीं बोल सकते। जब सरकार में आते हैं तो पूरे लोगों को वेलफेयर से देखना, ये हम आग्रह करते। मेरा नाम हनुमंतराय सिंदोल बोल के, मैं एडवोकेट हूँ। मैं बीदर दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मेरा गाँव है सिंदोल बोल के, उधर से मैं तालुका रखता हूँ। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, लेकिन अब इस जीत से भी बड़ा सवाल ये है कि कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा। ये तो साफ है कि सीएम चेहरे का नाम कांग्रेस आला कमान ही फाइनल करेगा।
लेकिन आलाकमान के फैसले से पहले कर्नाटका में सीएम पद को लेकर लामबंदी होने लगी है। प्रचंड जीत के बाद सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार सिद्धरामैया बनकर उभरे हैं, तो वही डीके शिवकुमार भी बड़ा चेहरा है। कांग्रेस की जीत पर जैसे ही मुहर लगी, सिद्धरामैया के बेटे ने भी पिता की दावेदारी को दोहरा दिया, साफ कर दिया कि कर्नाटका में विकास चाहिए तो सिद्धरामैया ही कांग्रेस में अकेले दावेदार हैं। तो जवाब में डीके शिवकुमार के भाई भी सामने आए और इशारों ही इशारों में सीएम की कुर्सी पर भाई की दावेदारी जता दी, यानी दोनों नेताओं की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन कर्नाटका में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया को एक मंच पर लाकर ये जरूर दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। दोनों नेताओं को खड़गे ने अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। कर्नाटका में कांग्रेस की बड़ी जीत के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री की कमान सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में से किसे मिलेगी। मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नए सीएम पर मंथन होगा। इस बीच बेंगलुरु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया के घर के बाहर उनके समर्थकों ने सीएम वाले पोस्टर लगा दिए हैं, तो उधर कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के समर्थकों ने भी उनके आवास के बाहर सीएम वाला पोस्टर लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में कर्नाटका के अगले सीएम के तौर पर सिद्धरामैया को दिखाया गया है, तो वही कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के समर्थकों ने भी उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें कर्नाटका का मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग की गई है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कर्नाटका के नए सीएम को लेकर सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच सांकेतिक लड़ाई शुरू हो गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी
बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक की जयानगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार सीके राममूर्ति ने शनिवार को अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को मात्र 16 मतों के मामूली अंतर से मात दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य सूचना विभाग के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि जयानगर में SSMRV कॉलेज के मतगणना केंद्र में अधिकारियों ने देर रात नतीजों की घोषणा की, क्योंकि जीत का अंतर बहुत कम था। ऐसे में राममूर्ति ने मतों की पुनर्गणना की मांग की थी। जयानगर में RV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर में उस वक्त तनाव व्याप्त हो गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के साथ साथ राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और सौम्या रेड्डी के पिता रामलिंगा रेड्डी समेत कई अन्य नेता मतगणना केंद्र के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। उन्होंने राममूर्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चुनाव अधिकारियों ने 16 मतों के मामूली अंतर से राममूर्ति को विजेता घोषित किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह अब तक की सबसे कम अंतर की जीत है। वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गांधीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिनेश गुंडूराव ने बीजेपी के अपने नजदीकी उम्मीदवार सप्तगिरी गौड़ा को मात्र 105 वोटों से हराया है। इसके अलावा श्रृंगेरी सीट पर कांग्रेस के TD राजेगौड़ा ने बीजेपी के DN जीवराज को 201 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं कांग्रेस के KY नंजेगौड़ा ने मैलूर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी KS मंजुनाथ गौड़ा को 248 वोटों से हरा दिया। कुमता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिनकर केशव शेट्टी ने JDS उम्मीदवार सूरज नायक सोनी को 676 वोटों से हराया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 224 सीटों में 136 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया, तो वहीं बीजेपी ने 65 सीटों पर जीत हासिल की। अगर मत प्रतिशतों की बात करें तो कांग्रेस को लगभग 43%, तो वहीं बीजेपी को 36% वोट प्राप्त हुए। इस प्रचंड जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी भी की। इस दौरान बेलगावी जिले में मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो बेलगावी जिले के तिलकवाड़ी पुलिस थाने का बताया जा रहा है। यहां मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान यहां उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की जीत शुरू हुई तो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार पार्टी के उन 12 उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की है। शिव कुमार ने कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान 75% हासिल करके जनता दल सेक्युलर के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी B नागराजू को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। शिव कुमार को 1,41,117 वोट मिले, जबकि नागराजू को 20,518 वोट मिले। भाजपा के R अशोक 19,743 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के साथ पार्टी फिलहाल के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में सत्ता विहीन हो गई है।
पार्टी की केवल कर्नाटका में ही सरकार थी और वह यह चुनाव जीतकर तेलंगाना में चुनावों समेत आम चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती थी। लेकिन इस परिणाम से बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। फिलहाल बदलाव जब होगा तब होगा, लेकिन अब प्रदेश की सत्ता में बदलाव हो चुका है। कांग्रेस ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए सत्ता के दरवाजे पर अपनी आहटें दे दी हैं और इसी बीच बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार देर शाम राजभवन जाकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैं लेता हूं। हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं और एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर मेहनत करेंगे और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गांधीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिनेश गुंडूराव ने बीजेपी के अपने नजदीकी उम्मीदवार सप्तगिरी गौड़ा को बेहद ही कम वोटों से हराया है। वहीं दिनेश ने सप्तगिरी को मात्र 105 वोटों से पराजित किया। कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश को 54,118 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सप्तगिरी गौड़ा को 54,013 वोट प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही इस सीट पर तीसरे नंबर पर जेडीएस के वी नारायण स्वामी रहे, जिन्हें 12,857 वोट मिले। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह अब तक की सबसे कम अंतर की जीत है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी हार भाजपा के कुछ गद्दारों के कारण हुई है। प्रसिद्ध वकील हनुमंत राय सिंदोल ने बीदर दक्षिण को विकास करने का निवेदन किया। सिद्धरामैया वर्सेस डीके शिव कुमार, जाने किसके पास कितना पावर, किसका सियासी पलड़ा भारी। कर्नाटका कांग्रेस में लड़ाई शुरू, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के घर के बाहर लगे सीएम वाले पोस्टर। कर्नाटका चुनाव, हारते हारते बचा भाजपा का उम्मीदवार, महज 16 वोटों के अंतर से मिली जीत। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।